धन्नवाहेगुरु साहिब जी साधक संग सब कुली उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को बरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी दी पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़े भागी साध संगत जी, बड़े भाग्य हो आप जो सतगुरु दी रहमत का सदका अमृत वेले दी संभाल करके अमृत वेले तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन मोल के हीरा आनंद गुणी की हीरा दी दात श्रवण करके जीवन की अगवाई शब्द गुरु तो लैके जीवन को सफल ते सुहेला कर रही सी। लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों श्री सुखमनी साहिब जी की कथा आप बड़े भागी जीवने रोजाना श्रवण करते आ रहे हो। सतवीं अष्टपदी दे 4 पदियां की कथा कल तक संपूर्ण हुई सी। सतवीं अष्टपदी दे 5वें पदे का पाठ असी श्रवण किया है। इस पावन समुची अष्टपदी के अंदर सतगुरु पातशाह जी ने गुरमुखां की संगत करन की प्रेरणा दी ते उस तो जो मनुख नूं आत्म पलाहा मिलता है उसका जिक्र किया है। इसकी कथा जो सतसंगत की है बड़े पुरखां दी गुरमुखां दी गुरु की संगत है। इस कथा राही गुरु का उपदेश संदेश तुष बुद्धि अनुसार दासरा गुरबाणी के आधार ते आप जी दे नाल साझा करे। इस तो पहला आओ सारे गुरु दर घर की चली आ रही मर्यादा अनुसार अदब सहत दो हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यारा लाखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਲੀ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਂ
ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਖਤ ਮਨ ਮੁਖ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਉਜਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੀਤ, ਸਾਖਤ ਕਾਰੀ ਕਾਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੀਤ। ਸੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਉਜਲੀ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੂਗਾ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੀਤ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਦੂਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਏਤ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਖਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਖਤਾਂ ਦਾ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਅਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਖਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਸਾਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸਿਐ ਤੋ ਕਿਛ ਲਾਗੋ ਦਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੂਏਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
कबीर साहब महाराज जी ने एक उदाहरण भी बड़ी कीमती दी है। गुरमुख जेड़े कन को कोमल हृदय वाले केले दे दरखत की तरह है, ते साकत जेड़े कन जो गुरु दे उपदेश सिक्ख्या तो अनकारी है, वो बेरी के कंडियां वर्गे बड़े तिखे हैं। हुण जेकर केले दा बूटा बेरी के कोल उग पवे ते की होवेगा? हवा दे झोंकियां दे नाल वो केला ते झूमेगा, पर हुण बेरी ते कंडे कोल बेरी ते झूमा वो कंडे उसनूं चीर के रख देणगे। कबीर साहब दे की बचन ने, कबीर मारी मरो को संग की केले निकटियों वेर, ओ झूले ओ चीरिए साकत संग ना के। गुरमुख ते प्रभु दी रजा दे विच बड़े आनंदित रहिंदे सन, झूमदे सन। गुरु दे उपदेश सिक्ख्या दे नाल वो बड़े सहज ते सुहेले जीवन के अंदर विचरते हैं। वो झूले पर जेकर सातां दी संग मिल गया वो चीरिए। ऐसियां ऐसियां नास्तिक गल्लां वो कहणगे, ऐसियां ऐसियां बुरियां विचारां कहणगे, उन्हां दा हिरदा वो विचारां दे नाल इवें चीरिया जांदा है जिवें केले दा बूटा वो बेरी के नुकीले कंडियां दे नाल चीरिया जांदा है। इस करके साहिब ने बड़ी बड़ी ताड़ना की है, बुरियां की संगत नहीं करनी। इसका कारण साडा मन बुराई के अगे कमजोर है, छेती हार जाता है। साडा मन जेकर गुरु दे उपदेश विच मजबूत है, दृढ़ है, पक्का है, डोलण वाला नहीं, फिर भावें असीं सातां दी संग दे विच चले जाइए, फिर बुरियां दा संग भावें कर लईए, क्योंकि हुण गुरु दे उपदेश सिक्ख्या दे नाल साडा मन ही बड़ा दृढ़ है। असीं सगों बुरियां ते अपना प्रभाव छड्ड देवांगे, पर मनुख दा मन जिहड़ा है वो बुराई दे अगे बड़ा कमजोर है, छेती ढट जांदा है। किसी नूं खंडे की पौल वास्ते तुसीं सालां साल कहंदे रहो, उपदेश देई चलो, पर मन सारी उम्र इस दे नाल कई बार सहमत ही नहीं हुंदा। शराब वास्ते कोई आख देवे ते शायद मन छेती सहमति दे देना है। मन साडा बुराइयां दे अगे बड़ा कमजोर छेती ढह जाता है। जेड़ा तकड़ा इंसान पहलवान है वो कमजोरा कोलों थोड़े डरदा, वो ते चाहंदा कमजोरा विच, उसनूं पता मैं ढहण वाला नहीं हां। जो मन दा मजबूत है, जो दृढ़ इरादे दा है, वो सातां बुरियां दी संगत दे कोलों डरदा नहीं। उसनूं पता है मेरे तकड़े मन नूं जो उपदेश के नाल मजबूत दृढ़ बनिया है, इसनूं कोई साकत डुलाई नहीं सकते। जो गुरु की संगत है ये मन नूं बड़ा बड़ा मजबूत कर देंदी है, बड़ा मजबूत। संस्कृति के अंदर एक पंचम पातशाह जी का श्लोक है, ते उसके अर्थ बड़े रहस्यमयी ते बड़े कोहज हैं ते बड़े कीमती हैं। वो श्लोक संस्कृति का ये है, मस्कं पगनंत सैलम कर्दमं तरंत पपीलक सागरंग लघंत पिंगं तम प्रगास अंधक साध संगेल स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे। अखरी अर्थ ये बड़े सौखे हैं,
संस्कृति जिहड़ी है ना वो संस्कृत भाषा तो थोड़ी अलग है। ये संस्कृति पाली भाषा तो आई है ते जिन्ने भी बुद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो पाली भाषा दे विच सारे लिखे हैं। ये संस्कृत तो थोड़ी अलग भाषा है संस्कृति, पर संस्कृत दे है बिल्कुल नजदीक। खैर बात लंबी ना होवे, अखरी अर्थ इस श्लोक दे सौखे हैं। मस्कं पगनंत सैलम, मस्कं संस्कृत विच मच्छर नूं कहंदे ने। पगनंत दा भाव है तोड़ देना, सैल का भाव है पत्थर। मस्कं पगनंत सैलम, एक मच्छर बड़े तो बड़े पत्थरां नूं तोड़ दिंदा। अखरी अर्थ पहला मैं करदा हां। मस्कं पगनंत सैलम करदमं तरंत पपीलकः। करदमं का भाव है चिक्कड़, तर का भाव है तर जाती है, पपीलकः का भाव है कीड़ी। एक कीड़ी भी चिक्कड़ नूं दल नूं तैर के पार लंघ जाती है। सागरं लघंत पिंगल, जो एक पिंगला मनुख है जो लत्तां तो तुर नहीं सकदा, हत्थां दे नाल कुछ कर नहीं सकदा, वो सागर नूं तैर के समुंदर नूं तैर के पार लंघ जांदा है। सागरं लघंत पिंगल तम पर घास अंधक। अंधक का भाव है अंधा मनुख, अन्ना। तम का भाव हुंदा है अंधेरा। एक अन्ना मनुख नूं तीन लोकां दी ही सोची हो जाती है। कदों हुण अखीरली पंक्ति विच कहंदे हैं, साध संगेल सिमरंत गोबिंद शरण हर हर हरि। जदों मनुख संगत दे विच आके वो गोबिंद परमात्मा दे गुण सरवण करदा ते जीवन दे अंदर उसनूं धारण करदा, उस वेले लो हुण जो गोहज अर्थ है ना इस पावन श्लोक दे वो बड़े ध्यान दे नाल सरवण करने। मस्कं पगनंत सैलम, एक मच्छर की तरह जो कमजोर मनुख है, जिसका बकारा दे अगे हंकार दे अंगे कोई जोर ही नहीं चलता, मच्छर की तरह बड़ा कमजोर है। पगनंत सैलम, ऐसा मनुख अगर गुरु की संगत करके गुरु के वचनां नूं जीवन के अंदर अपना लवे ते हंकार रूपी पत्थरां नूं तोड़ देना है। मच्छर की तरह जो कमजोर है वो हंकार के पत्थर नूं तोड़ देंदा। दरअसल इस संसार के अंदर सब तो बड़ा सूरमा है ही वो जेड़ा इस दुष्ट हंकार नूं अपने जीवन दे विचों भन देवे। नानक सो सूरा बरियाम जिन विचों दुष्ट हंकरण मारिया। असल वो सूरमा है, वो बलवान है, वो बहादुर है जिन विचों दुष्ट हंकरण मारिया, जिसने अपने जीवन के विचों एक दुष्ट हंकार जेड़ा वैरी के दुश्मन पैदा करता है उसनूं जो मुका लेंदा है। एक मच्छर की तरह जो हंकार के अगे बड़ा नमाना नताना है। मस्कं पगनंत सैलम, वो बड़े बड़े हंकार जैसे पत्थर को तोड़ देता है। फिर अगलियां पंक्तियां, करदमं तरंत पपीलकः, एक कीड़ी चिक्कड़ नूं पार लंघ जांदी, भाव की जेड़ा मनुख कीड़ी की तरह बड़ा नताना है, वो संसार दे मोह दे चिक्कड़ नूं पार लंघ जांदा है। परिवार दे विच रह के, संसार दे अंदर रह के, संसार की किरत करदियां वो मोह दे विच फसदा नहीं, सगों फिर भी ये मोह तो पार लग जांदा, परिवार विच रहिंदा होया
फिर संगत विच आउंदा है ते ये मोह तो निर्लेप हो जाता। वरना पंख जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तैन डूबी आए। एक मोह के चिकड़ दे अंदर ऐसा मनुख फस जाता, धर्म के रस्ते ते इसके पग, इसके पैर, इसके कदम चलते ही नहीं। पंख जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी आले। सतगुरु कहते साडे देखदियां ही देखदियां लोग मोह दे चिकड़ दे विच डुब जांदे। जेता मोह प्रीत स्वाद सभे का कालख दाना दाग। पर जदों मनुख गुरु की संगत विच आउंदा है, गुरु की मजबूत ए विचार उपदेश सुनता है, भावें वो कीड़ी की तरह चल नहीं सकता, पर भयानक ए मोह के चिकड़ को पार कर जाता, पार लंघ जाता, मोह के विच फसदा ही नहीं है। अगलियां पंक्तियां सागरन लगंत पिंगन तम पर गास अंधकर। असी मन करके पिंगले जो धर्म के रस्ते ते साडा मन, जो गुरबाणी के उपदेश से साडा मन चल ही नहीं रहा, इस करके मन पिंगला है साडा। जो गुरु की सिक्ख्या ते चलना नहीं है, हिम्मत नहीं चलण दी। पर जदों ये मन सच की संगत करता है, जदों गुरु की बचना की संगत करता है, सागरन लगंत पिंगन, ये पिंगला मन जेड़ा है, जेड़ा धर्म के रस्ते ते नहीं चलता, वो संसार सागर दे वकारां नूं तर जांदा, इन्हां तों वो बच जांदा है। तम पर गास अंधकार, असी अज्ञानता करके अंधे हाँ, पर जदों असी गुरु की संगत करते हाँ, जदों गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच गुरु की रोज रोज असी सिक्ख्या सुनते हाँ, ते अज्ञानी मनुख भी गुरु शब्द के ज्ञान वाला हो जाता, ते उसनूं सारी सारी जीवन की सोची हो जाती। तम पर गास अंधकार। अखीरलियां पंक्तियां साध संगेल सिमरंत गोबिंद, जदों सत संगत दे विच आके मनुख परमात्मा नूं चेते रखदा है, गुरु दे उपदेश नूं चेते रख के जीवन दे अंदर उसनूं इस्तेमाल करदा है। साध संगेल सिमरंत गोबिंद शरण नानक हर हर करे, ते मनुख इस संसार भव सागर दे वकारां तो मनुख बच जाता है। इस करके गुरु रामदास पातशाह जी संगत की बड़ियाई बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बड़ियाई करते हैं। संगत का गुण बहुत अधिकारी, पर सुआ गन उधारे। परसन परस भय कुब जाको लै बैकुंठ सुधारे। सत संगत मिले का दृढ़ता आवे, हर राम नाम निसारे। गुरु रामदास पातशाह जी दे के बचन ने पहले बचन ये करते ने, संगत का गुण बहुत अधिकारी, सच्ची संगत करन दा बहुत बहुत आत्मक लाभ मनुख नूं मिलदा है। हुण अद्धी पंक्ति दे विच उदाहरण एक पुरातन दित्ती है, पर सूआ गनक उधारे। गनक दा भाव है बेसुआ, ते सूआ जिहड़ा लफ्ज़ इस संस्कृत सूअटा तो बनिया है, भाव तोता। एक बेसुआ जिसका नाम पुराणा दे विच चंद्रमणि लिखिया है। गनका ये हिंदी भाषा का अखर है, पंजाबी विच अर्थ बनते बेसुआ, ते उस गनका बेसुआ का नाम पुराणा दे विच चंद्रमणि लिखिया है। गुरु रामदास पातशाह जी कहते पर सूआ गनक उधारे। वो जो गनका बेसुआ चंद्रमणि सी, सूए नूं तोते नूं पढ़ाउंदी पढ़ाउंदी आप ही तर गई सी।
भगत नामदेव जी ने भी इसका जिक्र किया है। सुआ पढ़ावत गनका तरी, सो हर नैनो की पूतरी। तोते नूं पढ़ाउंदी पढ़ाउंदी गनका जेड़ी उतर गई सी। ते पंचम पातशाह ने भी इसका एक थां ते जिक्र किया है कि गनका जेड़ी सी वो तोते नूं पढ़ाउंदी पढ़ाउंदी आप ही इस संसार सागर के वकारा तो बच गई। हुण टूक मात्र के सारे भगतां ने ते गुरु पातशाह जी ने एक पुरातन कथा का जिक्र किया, टूक मात्र। पर किवें वो चंद्रमणि जो गनका वेसवासी वो किवें कर गए? तत् गल ये है इसके अंदर, जदों असी भले पुरखां दा, जदों असी सत संगियां दा, जदों असी गुरमुखां दा संग करते हाँ, उस वेले असी वकारां तो बचते। तत् ये गल कही। हुण भाई गुरदास जी ने इस पंक्ति की व्याख्या की है, सुआ पढ़ावत गनका तरी, किवें तरी। हुण संखेप दे विच मैं वो कथा जो भाई गुरदास जी ने लिखी है गनका चंद्रमणि दी, बड़े संखेप दे विच मैं आप जी दे नाल वो साझी करा, ताकि साडे मन दे अंदर ये पक्का बैठ जावे। जदों असी गुरमुखां दा संग करांगे, सच दा संग करांगे, गुरु दे वचन असी सरवण करांगे ते साडे जीवन दे अंदर एक महान तब्दीली आ जाएगी। भाई गुरदास जी कथा आरंभ करदे ने, कहंदे एक बेसवा चंद्रमणि उस सुबह तो लैके शाम तक शरीर नूं तन नूं बेचण दा कर्म करदी सी। गनका पापण होई कै पापां दा गल हार परोता। धर्म की गल तां उसनूं बिल्कुल पता ही नहीं सी। कहंदे एक सवेर नूं सुबह तो लैके शाम तक बड़ा मींह पैण लग पिया, हटन का नाम ना लिया। सारा दिन पैंदा गया, रात आ गई, सूरज छुप गया। अज एक चंद्रमणि बेसवा उदास सी, कोई गाहक नहीं सी आया। जदों शाम पै गई, सूरज छुप गया, अंधेरा उतरन वाला हो गया, किसी ने दरवाजे ते दस्तक दी, दरवाजा खड़काया। दौड़ के इसने जाके दरवाजा खोलिया, पर जदों दरवाजा खोलिया सोच तो उल्ट सी। सामने साधु खड़ा सी, लिबास भी साधुआं वाला, ते उसदे हथ विच तोते वाला पिंजरा सी। ते उस साधु ने आखिया, बेटी सवेर तो मींह पै रहा, मेरी झोंपड़ी जेड़ी ओ चूण लग पई ते तोता मेरे कोल है, इसनूं बचाउणा मेरा फर्ज है। बेटी मैं एक रात तेरे कोल ठहरन वास्ते आया। मेरी बेटी मैं आप दे कोल ठहर सकदा रात? मुद्दतां तो बाद इस शब्द कन्नां दे विच चंद्रमणि ने बहुत मुद्दतां तो बाद बेटी सुनिया सी। कोई बेटी कहने वाला बड़े मुद्दतां तो बाद आया, पूरा तन उसका कंब गया सी बेटी लफ्ज सुन के। मैनू भी कोई बेटी कहने वाला आया, बैरागवान हो गई, बोल ना सकी, बस इशारे दे नाल अंदर आउण उसनूं संकेत दे दित्ता। साधु कपड़े भेजे पए सी ते एक पासे चंद्रमणि ने जल्दी जल्दी लकड़ां दी अग बाल दित्ती, एक पासे साधु नूं बिठा दित्ता ते दूसरे पासे आप बैठ गए। हुण जदों वो साधु वचन बिलास करे, जदों बेटी कह के पुकारे, उस वेले चंद्रमणि होण लग पवे, व्याकुल हो जावे। भाई गुरदास जी कहते ने, गनका पापण होए के पापां दा गढ़ हार परोता, महापुरख अचान चक गनका वाड़े आए खलोता। जब वचन करे बेटी कहे, गनका रोन लग पवे, व्याकुल हो जावे। उस साधु ने पूछा, बेटी
तू बार बार क्यों रोती है, तू बार बार क्यों तू व्याकुल हो रही है। चंद्रमणि ने जो सच की जीवन की कहानी सी सब कह दी। बाबा मैं कोई भली औरत नहीं हाँ, मैं कोई सुहागण नहीं हाँ, मैं ते दुहागण हाँ। बाबा मैं कोई भला काम नहीं करती, मैं ते पापां दे विच लबरेज होई पई हाँ। बाबा मैं कोई धर्म दा कर्म नहीं करती, मैं ते कुकर्म करती हाँ। जो जीवन की सच कहानी सी चंद्रमणि ने सब कह दी। दुर्मत देख दयाल होए, हथों उसनूं दित्तों टूटा। हुण जदों ये हालत देखी चंद्रमणि दी, दुर्मत ये हालत वकारा दे विच बड़ी भैड़ी बन चुकी है। दयाल होए, अंदर दया आ गई। लोकां धर्मी अते अधर्मी पुरख दी एक निशानी है। जेड़ा अंदरों धर्मी होवे ना, वो वकारा विच फसे मनुख नूं देख के कदी नफरत नहीं करदा। ओते जीवन के अंदर सगों दया आउंदी पई, किसे ना किसे तरह इसनूं मैं वकारा दे विचों कढ लवां। पर अखौती धर्मी जेड़े हन, जदों वो किसे नूं देखदे वकारी नूं, उन्हां दे मन दे अंदर ते नफरत आ जांदी है। हुण उस साधु ने देखिया वेसवा नूं, चंद्रमणि नूं दुर्मत देख दया आ गई। इसलिए मैं पापां दे विचों कढ देवां। हथों उसनूं दित्तन तोता, जेड़ा तोता सी उसनूं दित्ता एक बड़ा कीमती के संकेत दिता। चंद्रमणि जे तू पापा तो बचना चाहुंदी है, जे बचना चाहुंदी है, मनुख दरअसल बचना चाहुंदा नहीं है। जे बचना चाहे तो शराब तो बच सकता है, जे बचना चाहे तो दुराचार तो बच सकता है, जे बचना चाहे तो झूठ तो बच सकता है, जे बचना चाहे तो दुराचार तो बच, पर बचना नहीं चाहता है। बचना चाहे तो कुसंग तो बच सकता है। वो साधु ने आख्या जे पापा तो बचना चाहती है ते ये तोते नूं रोज रोज अमृत वेले जागना, इशनान करना, इसनूं राम राम पढ़ाना, रोज पढ़ाना इसनूं। ते कनका हुण ओ बेसवा चंद्रमणि अमृत वेले जागदी, तोते ओ तोता देके ते ओ महात्मा साधु चला गया। हथों उसनूं दुत्तन तोता, राम नाम उपदेश कर खेल गयो ते बन जसयोता। ये उपदेश दे के वो मानो 100 नफे वाला बंज कर गया। किसी ने धर्म का रास्ता दिखा के 100 नफे वाला वो बंज कर गया। ते पिछों लिब लगी किस तोतियों नित पढ़ाए करे असोता। असोता का भाव है सौन तो बगैर निंदरी रह के। वो गनका अमृत वेले उठदी, इशनान करदी, बैठ जाती चौंकड़ा मार के, तोते नूं आखदी कह राम 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 राम। बस करदियां करदियां उसकी अपनी लिप ही जुड़ जाती। नित पढ़ाए, रोज पढ़ाउंदी सी, करे असोता। निंदरी रह के नींद भी लागे नहीं सी आउंदी। लिव लगी किस तोतियों नित पढ़ाए करे असोता। पतत पावन दुर्मत नाम कलेवर तोता। जो परमात्मा का नाम है, पापी तो पवित्र कर्म वाला जिमें जिमें वो राम राम पढ़ाउंदी गई, जीवन के अंदरों वकारां की मैल धोती गई उससे। प्रभु का सिमरन, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माही समाए। सिमरन दे नाल, प्रभु की याद दे नाल अंदरों वकारां की मैल धोती जाती ते सब धोती गई उसकी मैल।
पतत उदाहरण राम नाम दुर्मत पाप कलेवर धोता। साडा सारा जीवन उसका कलेवर तो धोता गया, वो पवित्र हो गई। हुण कुकर्म नहीं करती, वो किरत करती, सारा दिन प्रभु नूं चेते रखदी ते लोग भी उसको नसीहत लैण लग पए सी। बिरध अवस्था दे विच आ गई सी। अंत काल जमजाल तोड़ नरके विच न खाद सगोता। जदों जीवन उसका बीत गया ते फिर मुड़ के उसने ये वकारां दे विच गोता खाधा ही नहीं। अंत काल जम जाल तोड़, ये वकारां दा जाल उसने तोड़ दिता जीवन दे अंदर। मुड़ के दुराचार दे नरकां दे विच उसने गोता खाधा ही नहीं। गई बैकुंठ बेबान चढ़, वो प्रभु दे नाम के गुणा दे बवान के सवार होके उसने अपना जीवन सफल कर लिया। गई बैकुंठ बेबान चढ़, ओदी अवस्था बैकुंठ स्वर्गा वाली गुणा दे बेबान ते सवार होके बन गई। गई बैकुंठ बेबान चढ़, नाउ नारायण छोट अछोता, थाउ निथावे मान मनता। परमात्मा का नाम जो संगत विचों मिलता है आन के, वो ते निमाणियां नूं भी मान दे दिंदा है। तुसीं देखो वो बेसवा गनका चंद्रमणि निता प्रति दुराचार करती सी, पर जदों भले पुरख की संगत होई, जदों वचन सुने एक भले पुरख ने, जदों उपदेश दिता, पापां तो वो बिल्कुल निर्लेप हो गए। लोग नसीहत लैण लग पे, उसका नाम गुरबाणी दे अंदर। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने बार बार लिया, संगत का गुण बहुत अधिकार, बड़ा गुण है संगत करन दे विच। मनुख पापां तो बच जाता है, बुराई तो बच जाता है। इस करके मेरे साहिब अज दे पावन पदे अंदर भी अकाल पुरख की संगत ते गुरु की संगत, भलियां की संगत करन दी बड़ी प्रेरणा दिंदे। एक एक पंक्ति दे आपां आखरी अर्थ ते कुछ विचारां करिए। एक बारी सावधान एकाग्रचित होके आखो सतनाम। सतगुरु फरमान करदे, साध के संग सब कुल उदा है। जदों असीं गुरमुखां दी संगत करदे हां, अपना सारा कुल भी उधार कर लेंदे। साडा कुल किहड़ा है? ये साडे ज्ञान ते कर्म इंद्रे ही साडे कुल है। इन्हां नूं असीं वकारां तो बचा लेंदे। अखां दे नाल बुरा देखदे नहीं, कन्नां दे नाल बुरा सुणदे नहीं, रसना दे नाल बुरा बोलदे नहीं, दिमाग दे नाल बुरा सोचदे नहीं, पैरां दे नाल बुरे पासे चलदे नहीं, हत्थां दे नाल बुरा करदे। एक कुल उदाहरण लैंदे हां। इत्थे सतगुरु ने वो वचन कहे, कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप करे सगले गुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाईंदा। अपना कुल अपने ज्ञान इंद्रियां भी उतार लेंदा है। साध संग साजन मीत कुटुंब निसारे, फिर जोड़े ओदे अंगी संगी हुंदे साथी मित्र हन, उन्हां नूं भी भला उपदेश दे के वो बुरी विचार तो बचा लेंदे हैं। सतगुरु पातशाह फरमान करदे ने, साधु के संग सो धन पावे, गुरु दी संगत करन दे नाल मनुख नूं ऐसा नाम धन मिलदा है, जिस धन ते सब को बरसावे। इस धन दे नाल मनुख बरसोया जाता है, भाव उसकी इज्जत मान बन जाता है। कबीर साहब कहते ये नाम गुणा की लुट ते पई होई, तू लुट आप तू उद्यम करके तू लुट ले। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। नहीं तो पिछों ते पछताउणा पवेगा। जदों प्राण निकलते आ गए फिर बंदा पछताउंदा है, जो कि राम नाम की लुट पई सी, मैं लुटी क्यों नहीं, व्यर्थ क्यों गवा दी। जो मीह पै रहा सी ज्ञान का शब्द गुरु का, मैं उस मीह दे विच गया क्यों नहीं, फिर मनुख पछताउंदा है। फिर मेरे साहिब आखदे ने,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਭਲੇ ਤੋਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੈਸੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ RSS ਜੈਸਾ ਖੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਚੰਦਰਮਣੀ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੀਮਾ ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।